اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں۔ اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا۔ اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہے، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ آئی ناظرین، اس وقت میں ریاست مہاراشٹر کے ایجوکیشنل سٹی پونا میں ہوں، اور یہاں پر ایک بہت بڑا زبردست پروگرام ہونے جا رہا ہے جس میں ہندوستان کے، بھارت کے تقریباً 10 اردو اساتذہ کو ایوارڈ ہمارے ہاتھوں سے اور منتری مہودے کے ہاتھوں سے دیا جائے گا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آج 9 نومبر یوم اردو اور یوم اقبال کے طور پر منایا جاتا ہے، اور مہاراشٹر کی مشہور ایجوکیشنل اور اسپورٹس فاؤنڈیشن ہیں، شاندار اسپورٹس اینڈ ایجوکیشن ایسوسیشن، جو مہاراشٹر کے جے سنگھ پور کی ہے، ان کی جانب سے یہ شاندار پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ میں یہاں پر آیا ہوں اور آواز کی شکل میں یہیں سے میں آج نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں روانہ کر رہا ہوں۔ اس وقت انٹرنیشنل نیوز میں پہلی بڑی خبر آ رہی ہے چائنا سے۔ آپ جانتے ہیں کہ کورونا چین سے نکلا، پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہوا، پھر دھیرے دھیرے پوری دنیا کھلی۔ اب واپس خبریں آ رہی ہے کہ چین میں سخت لاک ڈاؤن لگا دیا گیا تھا کیونکہ چین میں کورونا کے کیسز پھر سامنے آئے، لیکن خبریں یہ آ رہی ہے کہ چائنا میں سخت لاک ڈاؤن کے باوجود کورونا کیسز میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ چین میں کورونا کیسز میں اضافے کے بعد سخت لاک ڈاؤن کی وجہ سے صنعتی پیداوار میں خلل پڑنے کے ساتھ ساتھ تعلیم اور روز مرہ کی زندگی شدید متاثر ہوئی ہے۔ ڈان اخبار میں شائع غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق چین نے سخت کووڈ-19 پالیسی میں نرمی کی اطلاعات کو مسترد کر دیا اور سخت ترین طور پر وہاں پر پھر دوبارہ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا۔ 7 نومبر کو چائنا میں 5600 کورونا کیسز سامنے آئے۔
जिस की वजह से और ज़्यादा चाइना में लॉकडाउन को सख्त कर दिया गया है। और इस कोरोना लॉकडाउन की वजह से बड़े आबादी वाले शहर में स्कूल बंद कर दिए गए, जबकि कई कंपनियों के अमले को आर्जी तौर पर घरों से ही काम करने की हिदायत दे दी गई है। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि इजराइल के वजीर आजम दोबारा नेतन्याहू ही बन गए हैं। उनकी जीत को 6 दिन मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन खबरें आ रही है कि जीत के 6 दिन के बाद नेतन्याहू को अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने मुबारकबाद पेश की। आप जानते हैं कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने पीर के रोज मुबारकबाद पेश दी है, और पार्टी के एक बयान के मुताबिक नेतन्याहू की जीत के 6 रोज बाद फोन करके उनको मुबारकबाद दी है जो बाइडेन ने। इजरायली इलेक्शन में 32 सीटें लेने वाली पार्टी ने कहा कि जो बाइडेन ने गुफ्तगू के दौरान नेतन्याहू से कहा कि हम भाई भाई हैं, हम मिलकर तारीख बनाएंगे। इजरायली चैनल 13 की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर ने नेतन्याहू को मुखातब करते हुए मजीद कहा कि इजराइल के साथ मेरा ताल्लुक, मेरी वाबस्तगी पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। मेरे दोस्त, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। बयान के मुताबिक नेतन्याहू ने जो बाइडेन से कहा कि हम मज़ीद तारीख़ी अमन मुआहदे हासिल करेंगे, ये मुआहदे हमारी पहुँच में हैं। इजराइल और अमेरिका का इत्तेहाद और उनके ताल्लुकात के लिए मेरी वाबस्तगी पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत है। तो अब लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि इजराइल को अमेरिका कह रहा है कि हम भाई भाई हैं, जबकि लोग ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट कह देते कि तुम हमारी ही नाजायज औलाद हो, और अब हम मिलकर मुल्क ही नहीं पूरी दुनिया में तबाही मचाएंगे। कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर जावेद से, जो कि गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, बवासीर, शुगर गारंटी से बिल्कुल ख़त्म, गैस, तेज़ाब, लिकोरिया, लीवर, किडनी, गुर्दे में पथरी। अगर आप देश विदेश में उनसे दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं देश विदेश में। इसकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। आइए, इस वक्त सऊदी अरब से 2 बड़ी खबरें आ रही है। पहली बड़ी खबर यह आ रही है कि सऊदी फ़ज़ाइया का F-15 लड़ाका तैयारा फौजी मश्क के दौरान गिरकर तबाह हो गया। तफसीलात के मुताबिक सऊदी तैयारा तरबियती मिशन के दौरान तकनीकी खराबी के बाइस गिरकर तबाह हुआ। ताहम सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक फ़ज़ाई अमला, जिसमें 2 अफसरान शामिल थे, वो अपनी किसी भी तरीके से हादसे से बच गए, अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी खबर सऊदी अरब से ये आ रही है कि सऊदी में लग्जरी कार को नज़र आतिश करने वाले यानी आग लगाने वाले 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी अरब की राजधानी रियाज में कारों के शोरूम में लग्जरी कार को जला दिया। इस हवाले से बसरी मवाद के सोशल मीडिया पर फैलने के बाद रियाद पुलिस ने ऐलान किया कि आग लगाने वाले 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार होने वालों में से 9 सऊदी शहरी और 1 नकले मकानी करने वाले कबाइल में से हैं। इन्होंने कार को आग लगाने के अलावा शोरूम में फायरिंग भी की थी, जिससे 2 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वहीं पर तीसरी बड़ी खबर सऊदी अरब से भी आ रही है कि मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में एक दिन में 25,000 अफराद की मकामी ज़बानों में रहनुमाई की गई। एक्चुअल में बैतुल्ला, मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में बाकायदा इस बात का इंतज़ाम किया गया है कि हर ज़बान में आप इमाम साहब का खुतबा, बयानात वगैरह सुन सकते हैं। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से। आप जानते हैं कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर हमला हुआ, कातिलाना हमला हुआ, और कमाल की बात यह है कि इस हमले की FIR भी दर्ज नहीं की जा रही थी, और कुछ लोग इसे बाकायदा एक नाटक और एक ड्रामा करार दे रहे थे। लेकिन पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई पाकिस्तान की हुकूमत को, और पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद इमरान खान पर कातिलाना हमले की FIR दर्ज की गई है। तफसीलात के मुताबिक इमरान खान पर कातिलाना हमले की FIR
इंदिराज की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में इमरान खान पर कातिलाना हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक वजीराबाद पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे में दफा 302, 324 के साथ दहशतगर्दी की दफात भी शामिल की गई है। आइए नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने आ रही है तुर्की से। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि शाम में जो दहशतगर्दाना हमले हुए हैं, तुर्की ने इसकी शदीद मजम्मत की है, निंदा की है। तुर्की वजारत खारजा ने मज़कूरा हमलों के हवाले से तहरीरी बयान जारी करते हुए इन हमलों की, जिनमें आम बेकसूर 9 शहरी हलाक हुए हैं और 70 जख्मी हुए हैं, इन हमलों की तुर्की ने शदीद मजम्मत की है। बयान के मुताबिक तुर्की ने शाम के सूबे अदलब में बेघर अफराद के 3 कैंपों को निशाना बनाने वाले हमलों की मजम्मत की है। बयान में इन हमलों की, जिनमें 9 शहरी हलाक हुए हैं, कहा गया कि यह हमले खित्ते में अमन बरकरार रखने और कशीदगी को कम करने की कोशिशों को नुकसान पहुंचाते हैं और इंसानी सूरत हाल को मजीद ख़राब करने का बाइस बन रहे हैं। इस तरह के हमले ये बिल्कुल गलत है और बाकायदा इन तमाम लोगों पर जिन्होंने ये हमले किए हैं, इन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। दाद खाज खुजली का जल्द से इलाज डॉक्टर शेख नाजिम से कांटेक्ट कीजिए 8983547069 पर। जोड़ों का दर्द, पाइल्स, बवासीर, एसिडिटी, वजन का कम करना, गुर्दों और मसानों की पथरी, गुप्त रोग, बालों का झड़ना और सफेद होना, इन तमाम बीमारियों के इलाज के लिए हिंदुस्तान आयुर्वेदिक सेंटर जलगांव। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।